ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، پاور ہونے کے باوجود، بڑی بڑی افواج ہونے کے باوجود جو ہے آج مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی۔ اور دعوے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، دعوے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے اقتدار کے اوپر، لعنت ہے ایسی حکومت کے اوپر، رب کعبہ کی قسم ہے انشاءاللہ الرحمن انقلاب آئے گا، جہاد کی برکت سے آئے گا، اور کفر ٹوٹے گا، جہاد کی برکت سے ٹوٹے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، اسرائیل برباد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ الرحمن، تلوار کی برکت سے ہوگا۔ کبھی یہ نوجوان جس نے ہسپانیہ کی صرف ایک عورت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں کا لشکر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو غلبہ اسلام، دفاع اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اسلام ہی کے ساتھ ہماری حیات اور نجات وابستہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی بھی اسلام ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی ہر دولت مل جائے، ہر نعمت مل جائے، روپے پیسہ مل جائے، درہم و دینار مل جائیں، وسیع و عریض جاگیریں مل جائیں، اگر ہمارے پاس اسلام موجود نہیں ہے، دنیا کی کسی دولت نعمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے پاس اسلام موجود ہے، انسان کچے جھونپڑے میں کیوں نہ رہتا ہو، صبح و شام کا اس کو کھانا نہ ملتا ہو، روٹی کے 2 لقموں کا محتاج ہو، اپنے بیگانے بن جائیں، دوست دشمن بن جائیں، رب کعبہ کی قسم اگر اس کے پاس اسلام موجود ہے تو دنیا کائنات کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ سامعین محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسانی زندگی کے تمام دینی و دنیاوی مسائل کا حل پیش کرتا ہے، ہر دور میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی فطرت، اس کا انداز، اس کا مزاج اور اس کی اٹھان وہ غلبہ ہے، جیت ہے اور فتح ہے۔ دین اسلام دنیا کے اندر مغلوب ہونے کے لیے، دبنے کے لیے، جھکنے کے لیے، رکنے کے لیے اور نیچا ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار، کہ جہاں جہاں تک رات کا اندھیرا اور جہاں جہاں تک دن کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں وہاں تک میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دین غالب ہو کے رہے گا اور کفر و شرک مٹ کے رہے گا۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ امام کائنات
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सहाबा के मजमा के अंदर बैठे थे और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इरशाद दिया है, हुक्म दिया है, इन्नल्लाह तबारक व तआला ज़वाली अल अर्ज़ फ़रअयतु मशारिकहा व मगारिबहा व इन्ना उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी की सारी ज़मीन लपेट दी, इसका मशरक भी लपेट दिया और मगरब भी लपेट दिया, और ये लपेट और सुकेड़ कर मुझको दिखा दी। व इंदा उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा, और मेरी उम्मत की हुकूमत वहाँ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ जहाँ तक ये ज़मीन है। वो सहरा हूँ, वो ज़ख़ीरे हूँ, वो पहाड़ों की चोटियाँ हूँ या मैदानों के दामन हूँ, जहाँ जहाँ तक ज़मीन है वहाँ वहाँ तक मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन कायम हो के रहेगा और कुफ्र व शिरक मिट के रहेगा। मेरे अजीज साथियों, दीन इस्लाम की बेस और बुनियादों के अंदर लाखों शुहदा का मुकद्दस खून शामिल है। सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का खून, हजरत खुबैब रजी अल्लाहु अन्हु का खून, बदर के शुहदा का खून, उहद के शुहदा का खून। और ये शुहदा की दास्तान बड़ी लंबी है, जो इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से शुरू होकर आज तक और आज से इंशाअल्लाहुर रहमान क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। लोग दीन के ऊपर गलबा दीन की खातर, दफाए दीन की खातर अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, इंशाअल्लाहुर रहमान क़यामत तक ऊंचा रहेगा। और कुफ्र व शिरक कल भी मिटा था, आज भी मिट रहा है, इंशाअल्लाहुर रहमान क़यामत तक मिट जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये वही दीन है जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन को कोई सफ़ा पे खड़े होके अपनी कौम के सामने पेश किया, अपना नजरिया, अपना अकीदा पेश किया और क्या कहा, या कौमी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ मेरी कौम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार व एतराफ़ कर लो, तुम दुनिया आखिरत के अंदर कामयाब हो जाओगे। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना नजरिया, अपना अकीदा लोगों के सामने पेश किया, कोई सफ़ा के ऊपर चढ़ के, तो इसके दो फायदे बयान फरमाए। पहला फायदा तुम्हारा जाती है और दूसरा फायदा तुम्हारा सियासी है। और ये दोनों फायदे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है कुरैशियों के सामने, हाशमियों के सामने, मक्का की चुजरा के सामने, सियासी आमाए दीन के सामने पेश किए। पहला फायदा बयान करते हुए फरमाया कि मेरी कौम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, दुनिया आखिरत के अंदर तुम कामयाब हो जाओगे। और दूसरा फायदा बयान करते हुए फरमाया, तमलिकुल अरब वल अजम, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, अरबो अजम के तुम मालिक बना दिया जाओगे और अरबो अजम की क़यादत, सियादत और खिलाफत अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। और वो खिलाफत जिसका वादा अल्लाह ने कुरान के अंदर किया है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह का वादा है, जो शरीयत इस्लामिया की पासदारी करने वाले होंगे, मैं ज़रूर बज़रूर उनको खिलाफत अता करूँगा। मेरे अजीज साथियों, इसकी शर्त यह है कि हम मुखलस होकर अल्लाह के दीन के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, अकीदा तौहीद के लिए और इस नजरिए के लिए मुखलस होकर खड़े होना हमारा काम है, और खिलाफत व क़यादत देना अल्लाह ताला का काम है। और इस दावत के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर इतनी कुव्वत और पावर है कि जिन कौमों ने, जिन अफराद ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के अपना अकीदा और नजरिया इसके मुताबिक बना लिया,
دنیا کی کوئی طاقت ان کو مغلوب نہیں کر سکی. ہر جگہ پہ وہ فاتح رہے ہیں, ہر جگہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں تھا. پیارے پیغمبر کا کسی پارٹی کے ساتھ, کسی گروہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن اختلاف کب ہوا؟ جب آپ کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد آپ نے اپنا عقیدہ اور نظریہ کوئی صفحہ پہ چڑھ کے پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے اختلاف کیا, آپ کو تانے مارے, اسی نظریے کی وجہ سے, اسی عقیدے کی وجہ سے آپ کو گالیاں دی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چٹان کی طرح کھڑے رہے. میرے عزیز ساتھیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے دفاع اسلام کے لیے. آپ علیہ السلام نے ہجرت کی دفاع اسلام کے لیے. آپ علیہ السلام نے اپنے خان وادوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے جو ہے دفاع اسلام کے لیے. اگر ہم پوچھیں بدر کے شہداء سے کہ تم کیوں کٹے, جواب آئے گا دفاع اسلام کے لیے. اگر ہم پوچھیں احد کے شہداء سے تم کیوں کٹے, جواب آئے گا دفاع اسلام کے لیے. اگر ہم پوچھیں امیر حمزہ سید الشہداء سے کہ آپ کے پور پور کو کاٹ دیا گیا, آپ کے سینے کو نکال کے جو ہے دانتوں کے نیچے چبایا گیا, آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا, اس قدر غمناک جو ہے منظر تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء امیر حمزہ کی لاش کے اوپر کھڑے ہیں. دور سے دیکھا کہ آپ کی پھپھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ حضرت صفیہ کو نہ آنے دو, یہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی. لیکن جب روکا گیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے مجھے مت روکو, میں اپنے بھائی کے اوپر رونے دھونے کے لیے نہیں آ رہی, میں تو اپنے بھائی کو شہادت کی مبارکباد دینے آ رہی ہوں. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوگی, بہنیں اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے جو ہے سر لے کر آئیں گی, میں اپنے بھائی کا کٹا ہوا انگ انگ لے کر آؤں گی. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ جواب آئے گا دفاع اسلام کے لیے. اگر ہم پوچھیں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, آپ نے پہلی رات اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا, کیوں؟ اس کی تاریخ ہمیں بتلائے گی کہ اس کے کانوں کے اندر آواز ٹکرائی تھی حیا علی الجہاد, جہاد کے لیے نکلو, غلبے کے لیے نکلو, اسلام کے لیے نکلو, اور وہ نکل گیا اپنی بیوی کو بیوہ کر گیا. اگر ہم بیوہ سے پوچھیں تیرا خاوند پہلی رات آپ کو چھوڑ کے کیوں گیا, جواب آئے گا دفاع اسلام کے لیے. ایک عورت کے 4 بیٹے میدان مقتل میں کٹ جاتے ہیں, کیوں؟ جواب آئے گا دفاع اسلام کے لیے. میرے عزیز ساتھیوں, اس اسلام کا ہم پر احسان بھی ہے اور قرض بھی ہے, اور احسان قرض ہمیشہ خون کے ساتھ چکایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن ہم سب عہد کرتے ہیں ہم اسلام کا بھی دفاع کریں گے, پاکستان کا بھی انشاءاللہ الرحمن جو اس نظریے کے اوپر قائم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر, اس کا بھی دفاع کریں گے. میرے عزیز ساتھیوں, دنیا کے اندر صرف 2 ملک ہیں جن کی اہمیت ہے امت مسلمہ کے نظر کے اندر. ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا پاکستان ہے. سعودی عرب ہماری روحانیات عبادات کا مرکز ہے, اور پاکستان عالم اسلام کا دفاعی مرکز ہے. آج پوری دنیا کے کتے بلے یہ کافر یہودی پاکستان کو اپنے نقشے سے ختم کرنا چاہتے ہیں, مٹانا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں. میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے, انشاءاللہ الرحمن پاکستان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے, پاکستان کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے, لیکن اسلام پاکستان قائم اور دائم رہے گا, کیونکہ اس کی بیس اور بنیادوں کے اندر لاکھوں شہداء کا خون ہے, اور اس کی بیس اور بنیاد بڑی مضبوط ہے. اور وہ بیس اور بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ये नजरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये इकरार उलूहियत है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इतराफ रसालत है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये इकरार उलूहियत है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह ये इतराफ नबूवत है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मकसद जिंदगी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ये तर्ज जिंदगी है। मेरे अजीज साथियों, पाकिस्तान को कोई आम मुल्क ना समझिए। आप कुरान पढ़ते हैं, जितनी नेमतें कुरान मजीद के अंदर हैं, अल्लाह ने जिक्र के तौर पर कुरान मजीद में रखी है और अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर रखी है। तो मेरे अजीज साथियों, आखिरी मेरी बात, आज दुनिया के अंदर आप हालात देख लो, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और मुसलमानों के खून को बहाया जा रहा है। आज हमने ये देखना है कि इस तनाजुर के अंदर इस्लाम हमसे क्या तकाजा करता है। हजरात, अहले इस्लाम की तारीख सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर मजलूम के साथ यकजहती और अमली यकजहती से बरी हुई है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का हजरत उस्मान गनी की शहादत की अफवाह के ऊपर आपके साथ यकजहती करना, 1400 सहाबा ने आपके हाथ पर बैत की थी, कट जाएंगे, मर जाएंगे जब तक हजरत उस्मान गनी की शहादत का बदला नहीं लेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। हजरात, ये पैगाम है मुसलमानों के लिए और बिलखसूस उनके हुक्मरानों के लिए। आज हमारे कंधों के ऊपर 1 2 नहीं, 4 6 नहीं, लाखों मुसलमानों का खून कर्ज है और इस कर्ज को अदा करने के लिए हमें वही किरदार अदा करना होगा जो सहाबा ने बैत रिज़वान में किया था। उम्मत मुस्लिमा के गयूर नौजवानों, अपनी तारीख तो उठा के देखो। मेरे अजीज साथियों, तारीख इस्लाम के उराक पलटने से समझ आती है। तारीख इस्लाम ने ऐसे जवान पैदा किए जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाकाबिल फरामोश कारनामों से तारीख के उराक रंग दिए। कभी ये नौजवान जिसने हस्पानिया की सिर्फ एक औरत की पुकार पर लब्बई कहते हुए हजारों का लश्कर लिया और देखते ही देखते फ्रांस और अंदलुस को फतह कर लिया और तारीख में इसने अपना नाम अजीम जर्नल तारक बिन जियाद की हसीयत से रकब करवाया। कभी ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में उठा, बहरी बरी को कुव्वतों को तोड़ता हुआ कराची से मुल्तान तक आ पहुंचा और इस उम्मत के गयूर नबी ने एक औरत की पुकार पर, जिसकी चादर को यहूदियों ने मदीना में उतार लिया था, गैरत में आकर पूरी कौम यहूद को जंग के लिए ललकार दिया था। ये वही यकजहती है जिसका तकाजा, अमली तकाजा आज फलस्तीन के बच्चे हमसे कर रहे हैं। ये वही यकजहती है जिसका अमली तकाजा आज फलस्तीन की माए हमसे रो रो के कर रही है, इन हुक्मरानों से कर रही है। हजरात, एक वक्त था 1000 मील दूर जुल्म का शिकार होने वाली एक बेबस औरत मुसलमानों को मदद के लिए पुकारती थी। पूरा मरकज़ इस्लाम हरकत में आ जाता था और उसे हरकत में आना भी चाहिए था, क्योंकि फुक़हा ने लिखा है इमरातुन सुबियत बिल मशरिकी, अगर एक औरत मशरक के अंदर गिरफ्तार हो जाती है, वाजब अला अहलिल मगरिब, अहले मगरिब के ऊपर वाजिब है अन यस्तन की जहा कि उसको छुड़ाएं और उसकी मदद को पहुंचे। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हज़रत मौलाना अबू उमर सयाफ साहब जिंदाबाद। कुफ्फार का एक ही इलाज जोर से बोलो जरा, कुफ्फार का एक ही इलाज, कुफ्फार का एक ही इलाज, नारा तकबीर। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, आज पूरी दुनिया के अंदर फलस्तीन बच्चों की आवाजें जो है आ रही है। क्या फलस्तीन के मासूम बच्चों की आवाजें इन हुक्मरानों के कानों से नहीं टकरा रही? क्या फलस्तीन और गज्जा की मासूम बच्चियों की आवाजें और चीखों पुकार क्या आज जो है दुनिया के हुक्मरान जो है उनके कानों से नहीं टकरा रही? लेकिन टस से मस नहीं हो रहे। मेरे अजीज साथियों, जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। अल्लाह की कसम है, आप भी देखते हैं मीडिया के ऊपर वीडियोस देखते हैं, बयान करना मुश्किल है और मैं मुबालगा नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम है, आज 4 महीनों से ऊपर दिन हो चुके हैं, बच्चों को ज़बह किया जा रहा है,
माँ बाप को उनका खून पीने पे मजबूर किया जा रहा है। बच्चों को माँ बाप के सामने नेज़ों की अनियों के ऊपर परोया जा रहा है और जवानों की गर्दनों को काट कर फुटबॉल की तरह सड़कों पे ठोकरें मारी जा रही है। यहाँ तक ही बस नहीं, स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मसाजिद को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मदारस को तबाह बर्बाद कर दिया गया और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। कुरान को जलाया गया। अल्लाह की कसम, मैं वीडियोस देख रहा था, औरतें, नंगी औरतें लाइन के अंदर पड़ी हुई हैं और वो दरिंदे आंखें नकार रहे हैं और बयान करना नहीं चाहता, जो है जिस्म कांप जाता है। शर्मगाहों के ऊपर उनके प्लास रख के उनको खींचा जा रहा है। इस हद तक जुल्म और सितम हो रहा है। एक जो है मासूम बच्चा अपने कंधों के ऊपर बैग लगा के जा रहा था। इस्राएली फौजी पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तालीमी अदारे तो बंद हो गए। कहता है, आपने मेरी मम्मा को शहीद किया है, मैं उसके टुकड़े और लोथड़े इसके अंदर डालकर लेकर जा रहा हूं। एक बाप है, उसके 3 मासूम लखते जिगर जो है बमबारी में कट जाते हैं और वो शापर लेकर उनके लोथड़ों को शापर के अंदर जमा कर रहा है। हजरात, आप जरा तसव्वुर करें, एक आदमी के दोनों बाजू कट जाएं, दोनों टांगे कट जाएं, कोई उठाने वाला ना हो, कोई मरहम देने वाला ना हो, कोई अस्पताल में ले जाने वाला ना हो, क्या कैफियत होती है। वालिदैन के सामने बच्चे सारे के सारे शहीद हो जाएं, वालिदैन पर क्या बीती है, और वालिदैन शहीद हो जाएं, बच्चों पर क्या बीती है। मेरा आपसे सवाल है, दुनिया के अंदर आज 56-57 इस्लामी ममालिक हैं। आज 4 महीनों से ऊपर दिन हो चुके हैं। किसी एक मुल्क ने या उसके हुक्मरान ने आज तक जो कोई अमली इकदाम किया हो, सिर्फ मजम्मत नहीं, ज़बानी दावे नहीं, सिर्फ बयान नहीं, कोई अमली इकदाम किया हो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के बारे में, गज़ा की मासूम बच्चियों के बारे में, मुझे आप उसका नाम बता दें। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, बड़ी बड़ी अफवाज होने के बावजूद जो है आज मजलूम मुसलमानों की मदद नहीं हो रही। और दावे क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। दावे क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहता हूं, लानत है ऐसे इक़्तिदार के ऊपर, लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। रब्बे काबा की कसम है, जो कुरान की अजमत पर कुर्बान ना हो, जो पैगंबर की नमूस पर जो कुर्बान ना हो, जो मजलूम मुसलमान बच्चों की खातिर उनकी मदद के लिए कुर्बान ना हो। हजरात, ये तो फलस्तीन है। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर एक औरत इस नीले आसमान की छत तले और इस धरती के ऊपर उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा हो, कसम है खुदा इस्लाम की, दुनिया का मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द नहीं समझेगा। अगर एक मुसलमान को तड़पाया जा रहा हो, कसम है जो है खुदा इस्लाम की, दुनिया का मुसलमान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझेगा। क्योंकि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है और उसको बियारो मददगार नहीं छोड़ता। इंशाअल्लाह रहमान इनकलाब आएगा, जिहाद की बरकत से आएगा और कुफर टूटेगा, जिहाद की बरकत से आएगा, टूटेगा। वो दिन दूर नहीं है, इसराइल बर्बाद होगा, फलस्तीन आजाद होगा, इंशाअल्लाह रहमान तलवार की बरकत से होगा। आप देख लें, कैसरो किसरा के खजाने टूटे थे, जिहाद की बरकत से फतह मक्का हुआ था, जिहाद की बरकत से लातो हुबल के मंदिर टूटे थे, जिहाद की बरकत से रूस के नजरिए को अफगानियों ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो है दफन किया था, जिहाद की बरकत से अमेरिका उसके इत्तेहादियों को जो है अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर तोड़ा था, जिहाद की बरकत से बदर का पहला मार्का जीता था, 70 लाशों के ढेर के ऊपर इस्लाम के परचम को लहराया था, जिहाद की बरकत से। इंशाअल्लाह रहमान आज भी कश्मीर आज़ाद होगा, फ़लस्तीन पर जुल्म रुकेगा और गज़ा पर बमबारी रुकेगी, इसराइल तबाह बर्बाद होगा। जिहाद की बरकत से कौमों की तारीख बेबसी के आंसुओं से नहीं, शुहादा के मुकद्दस खून से लिखी जाती है। लश्कर भी तुम्हारे, सरदार भी तुम्हारे, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारे,
इन अंधेरों को चीर कर, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको जो है फ़लस्तीन के बारे में यह दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ साथियों, सबसे आखिर के अंदर मैं नसीहत करता हूँ आप भाइयों को भी, अपने आप को भी, जो है हर दुआ में, हर दुआ के अंदर ये बात ऐड कर लें कि हमने जब अपने लिए दुआ करनी है तो फ़लस्तीनों के लिए भी करनी है, गज़ा के मज़लूमों के लिए भी करनी है। हम कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। अगर मुझे उम्मीद है रास्ते खुल जाएं, आप में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा इतना जुल्म सुन के, तो गलबा इस्लाम की दुआ करनी है और मज़लूम मुसलमानों की हर दुआ के साथ ये दुआ शामिल कर लें। इंशाअल्लाह जब भी अपने लिए दुआ करेंगे तो इनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।